गुड आफ्टरनून क्लास 10। लास्ट क्लास में हमने देखा था सोडियम कार्बोनेट, आज हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ लेट्स स्टार्ट। केमिकल फॉर्मूला इज NaOH। जस्ट अ मोमेंट। केमिकल फॉर्मूला इज NaOH। केमिकल फॉर्मूला is NaOH. Its common name is caustic soda. Common name is caustic soda. Action on litmus. Action on litmus. ये एक बेस है बेटा. This is a base. It contains a hydroxide ion, तो डेफिनेट है कि ये बेस है. So it will turn red litmus blue. It will turn red litmus blue. And solubility. Solubility. It is soluble. It is soluble in H2O. Solution जो होता है highly alkaline होता है. It's a very strong base. इसीलिए जो हमारा solution होता है NaOH का water में, it is highly alkaline in nature. It is high a water soluble base. और वो बेस जो वाटर में soluble होता है हम उसको अल्कली बोलते हैं. तो NaOH या caustic soda is soluble in water. अच्छे से soluble है वाटर में, completely soluble है वाटर में. और जो solution हमें मिलता है that is highly alkaline in nature. बहुत ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर उसमें रहता है. ऑब्वियस है कि strong base है ये. Let's start physical properties. Physical properties. Physical properties. It is deliquescent. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को deliquescent का मतलब समझाया था. It is deliquescent. Deliquescent का मतलब होता है कि अगर इनको ओपन एयर में छोड़ दिया जाए बिना किसी कवर, बिना किसी ढक्कन के, if it is left open in air, तो they will absorb moisture from air and dissolve in that moisture. खुद को ही उस moisture में dissolve कर लेते हैं. ठीक है, तो that property is known as deliquescence. White crystalline solid. White crystalline solid. It is a deliquescent white crystalline solid. Second, it is highly soluble in water. 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 And the solution is bitter in taste. और जो solution मिलता है and the solution dissolve करने के बाद जो solution मिलता है वो bitter होता है टेस्ट में, कड़वा होता है. बिकॉज हमने बेसिस की जब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो ध्यान होगा बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज बिटर इन टेस्ट. कोरोसिव होता है इसका नेचर, बेसिस का नेचर कोरोसिव होता है एंड सोपी टू टच. ये सारे प्रॉपर्टीज हमने बेस की जब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था. तो इसको वाटर में जब सॉल्युबल, ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, और जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है, कोरोसिव होता है उसका नेचर एंड सोपी टू टच होता है. इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल. इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल. इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल. इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल. हाउएवर KOH is fairly soluble. NaOH sparingly बहुत कम soluble होता है. sparingly ठीक, मतलब बस मोटा मोटी किसी तरह हो जाता है. लेकिन KOH is fairly soluble in water. fairly मतलब उससे ज़्यादा soluble है. तब जब कुछ अच्छी खासी क्वांटिटी में KOH dissolve कर सकता है वाटर के अंदर, पूरी तरह ना भी करे तो भी fairly soluble है. लेकिन NaOH is sparingly soluble in water. Clear है? चलो, let's start chemical properties. Let's start chemical properties.
प्योर NaOH। प्योर NaOH का प्रिपरेशन एक बार आप समझ लो। कमर्शियल NaOH, कमर्शियल NaOH besides impurities, commercial NaOH besides impurities such as Na2SO4, Na2SO4, NaCl, etc. invariably amount of Na2CO3, invariably amount of Na2CO3 due to absorption of commercial NaOH जो होता है that contains impurities such as Na2SO4 and NaCl, बट उन impurities के अलावा उनमें कुछ impurities डिजॉल्व होती हैं Na2CO3 की। वो Na2CO3 कैसे बनता है? ड्यू टू absorption of atmospheric CO2, ड्यू टू absorption of atmospheric CO2। एटमॉस्फेरिक CO2 NaOH जो है वो एटमॉस्फेयर से CO2 अब्सॉर्ब कर लेता है और उस कारण से Na2SO4 और NaCl जैसी इम्प्यूरिटीज के साथ साथ उसमें कुछ अमाउंट Na2CO3 का भी डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व मीन्स उसके साथ मिक्स हो जाता है। However, it may be purified. However, it may be purified. However, it may be purified by dissolving it in alcohol, in which impurities Na2CO3, NaCl, Na2SO4 are insoluble. The filtrate on evaporation gives off alcohol, leaving behind pure solid, NaOH, leaving behind pure solid NaOH। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा ये कमर्शियल NaOH जो हमें मिलता है, दैट कमर्शियल NaOH कंटेन्स इम्प्यूरिटीज सच एज Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। लेकिन उसके अलावा जो ये कमर्शियल NaOH है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर लेता है और इस कारण से उसमें कुछ अमाउंट ऑफ Na2CO3 भी एज इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होता है। Na2CO3 का केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। तो Na2CO3 भी एज इम्प्यूरिटीज इन सम अमाउंट प्रेजेंट होता है हमारे कमर्शियल NaOH में। तो अब इन इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम NaOH को, जो हमारा कमर्शियल NaOH है कंटेनिंग द इम्प्यूरिटीज, उसको हम अल्कोहल में डिसॉल्व कर दें। अल्कोहल में सॉल्युबल होता है NaOH, हमने अभी देखा था, पूरी तरह नहीं होता लेकिन काफ़ी कुछ सॉल्युबल हो जाता है वो अल्कोहल में। लेकिन जो इम्प्यूरिटीज़ है Na2SO4, NaCl एंड हमारा ये Na2CO3, दीज आर कम्प्लीटली इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। तो बहुत आसानी से ये सारे के सारे एज वो उसमें डिसॉल्व नहीं करेंगे और हमारा जो NaOH है वो अल्कोहल में डिसॉल्व कर जाएगा। उसके बाद हम उस सॉल्यूशन को फिल्टर आउट कर लेंगे। हमारा फिल्टरेट जो होगा दैट विल कंटेन अल्कोहल एंड NaOH एंड हमारा रेसिड्यू जो होगा वो सारी इम्प्यूरिटीज होंगी उसमें। अब इस अल्कोहल को हम हीट कर लेंगे। अल्कोहल
इवेपोरेट कर जाएगा, अल्कोहल इवेपोरेट करेगा, which will leave behind solid NaOH. So this is how a pure NaOH is obtained from a commercial NaOH. Clear? Let's move further. Let's move further. Chemical properties. Chemical properties. Action of atmosphere. Action of atmosphere. Atmosphere का क्या एक्शन होता है हमारे NaOH पर? NaOH on exposure to atmosphere, NaOH on exposure to atmosphere क्या होता है? CO2 absorb करता है. NaOH on exposure to atmosphere absorbs moisture and CO2 absorbs moisture and CO2 to form Na2CO3. मॉइस्चर अब्सॉर्ब करके क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो चूंकि डेलिक्वेसेंट है नेचर में, मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा उसमें घुल जाएगा और CO2 अब्सॉर्ब करके इट विल फॉर्म Na2CO3 plus H2O. लिक्विड, एक्वस, ये हमारा गैस, ये हमारा सॉलिड, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है? सेकेंड, स्ट्रॉन्ग अल्कली नेचर। स्ट्रॉन्ग अल्कली नेचर, स्ट्रॉन्ग अल्कली नेचर। स्ट्रॉन्ग अल्कली है बिकॉज ये कंप्लीटली आयोनाइज करता है Na+ और OH-। इट्स आयोनाइजेस कंप्लीटली मतलब इसके पास जितने भी OH है इट गिव्स ऑफ OH- आयन एज आयंस। जितना भी OH इसमें प्रेजेंट है वो इन आयंस के फॉर्म में ये कंप्लीटली सॉल्यूशन में उसको आयनाइज होकर निकाल देता है। तो इट इज स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन इन नेचर। इसमें सबसे पहला है हमारा रिएक्ट विथ, अल्कली है तो ऑब्वियसली है कि एसिड के साथ बेस। अल्कली मतलब एक वाटर सॉल्युबल बेस को हम अल्कली बोलते हैं, और अगर स्ट्रॉन्ग अल्कली है तो ऑब्वियस है स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो बेस विल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, ये तो हम सब जानते हैं। एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट्स। React with acid to form salts. NaOH plus HCl, it will give NaCl plus H2O. Second, आप इसी तरह NaOH plus H2SO4, it will give Na2SO4 plus H2O. स्ट्रॉन्ग अल्कली है तो एसिड के साथ रिएक्ट करके, स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग अल्कली है मीन स्ट्रॉन्ग बेस है, और एक बेस एक एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स बनाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ है, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा, बनाएगा हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। और विथ वीक बेस, विथ वीक बेस के साथ ये क्या करेगा? वीक बेस के साथ इट विल फॉर्म बेसिक सॉल्ट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन जो हम एसिड यूज कर रहे हैं वो वीक एसिड है, तो डोमिनेट बेसिक कैरेक्टर करेगा। तो विथ वीक बेस इट विल फॉर्म बेसिक सॉल्ट। फॉर्म बेसिक सॉल्ट NaOH
plus CH3COOH, it will give CH3COONA plus CH3H2O. It is सोडियम एसीटेट, एक सॉल्ट है जो बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो ये था रिएक्ट। अब आप नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसी में देखेंगे हम स्ट्रॉन्ग अल्कली नेचर में। पहला हमने देखा रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। अब इसी स्ट्रॉन्ग अल्कली नेचर में ही हम आगे बी पॉइंट देखते हैं। B. Combine with acidic salts. Combine with acidic salts. Combine with acidic oxides to form salts. Which may be acidic, basic और neutral। ठीक है, कंबाइन विद एसिडिक ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट, विच में जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, अल्कालाइन भी हो सकता है नेचर में। सॉरी, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है एंड न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में। इसके एग्जांपल्स हम देख लें। बेसिकली कहूँ तो ये NaOH प्लस एसिडिक ऑक्साइड्स, ये हमारा बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। सिंपल सा है, जो एसिड का नेचर होता है या बेस का नेचर होता है, रिएक्ट विद सॉल्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। NaOH plus CO2, it will give Na2CO3 plus H2O। ये हमारा सॉल्ट है, ये है हमारा एक बेसिक सॉल्ट, ये है हमारा एक बेसिक सॉल्ट। ये सॉल्ट्स के नेचर बेस जो एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने पे सॉल्ट्स बनते हैं, उनका नेचर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ, ये बैलेंस नहीं होगा बेटा, ये अब हो गया बैलेंस। नाउ इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट NaOH प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जब हम मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में फिर पढ़ेंगे। फिलहाल मैं बताती हूँ कि सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये हमारा बनाएगा Na2SO3 प्लस H2O। ये हो गया हमारा सोडियम सल्फाइड। दिस इज सोडियम सल्फाइड। बैलेंस करिए इक्वेशन को, ये वापस यहाँ से बैलेंस होगा, देखो ठीक से, क्लियर है? अच्छा, अब देखो NaOH फिर रिएक्ट करेगा Na2, दिस इज ऑल्सो एन एसिडिक ऑक्साइड। ये हमारा बनाएगा NaNO3 प्लस NaNO2 प्लस H2O। दिस इज सोडियम नाइट्रेट, दिस इज सोडियम नाइट्रेट, दिस इज सोडियम नाइट्राइट, दिस इज सोडियम नाइट्राइट, नाइट्राइड मीन नाइट्राइट। ठीक है, दिस इज सोडियम नाइट्राइट। नाउ बैलेंस करो इक्वेशन को, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कीजिए इक्वेशन को। एक तो यहाँ पे दो Na है, दो सोडियम, दो हो गया, 3 4 5 हो गया, ये बैलेंस है बेटा। दिस इज एन इक्वेशन। तो एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके एसिडिक सॉल्ट बना सकता है, बेसिक सॉल्ट बना सकता है या न्यूट्रल सॉल्ट भी बना सकता है। क्लियर है?
अब एम्फोट्रिक मेटल्स के साथ किस तरह का होता है ये हम देखते हैं। एम्फोट्रिक मेटल्स क्या होते हैं? एम्फोट्रिक मेटल्स वैसे ये जो मैंने आप लोगों को बताया बेटा, सल्फर, ये सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन की ये सारे के सारे हमारे नॉन मेटल्स हैं। ये आपने क्लास 8 और क्लास 9 में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, तो यू मस्ट बी नोइंग कि ये सारे के सारे हमारे नॉन मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड्स। अच्छा, एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स वो या एम्फोट्रिक मेटल्स वैसे मेटल्स होते हैं जो मेटल्स एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। उनको हम कहते हैं एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड, इन सबको हम कहते हैं एम्फोट्रिक मेटल्स। तो ऑक्साइड्स ऑफ एम्फोट्रिक मेटल्स, सी पॉइंट में, ऑक्साइड्स ऑफ एम्फोट्रिक मेटल्स जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, टिन। तो ऑक्साइड्स ऑफ एम्फोट्रिक मेटल्स डिसॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, dissolve in sodium hydroxide to form corresponding salts, Oxides of amphoteric metals dissolve in sodium hydroxide to form corresponding salts. ठीक है, एम्फोट्रिक मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। Al2O3 plus NaOH, ये बनाएगा NaAlO2 plus H2O। This is sodium meta-aluminate. This is a salt. Sodium meta-aluminate. Aluminium oxide plus sodium hydroxide will form sodium meta-aluminate. इसको बैलेंस करना होगा, आई थिंक 3, 1 4, 2 1 3। ये तो बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना ही होगा। यहाँ Al दो लगाओ, यहाँ 2 लगाओ, यहाँ 2 लगाओ। आई होप सो कि ये बैलेंस हो गया है। ठीक है, सो दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन। ZnO plus NaOH, this is from Na2ZnO2 plus H2O. This is sodium zincate। बैलेंस करिए इक्वेशन को, फटाफट बैलेंस करो। 2 इक्वेशन बैलेंस हो गया, देख लो, इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। नाउ टेस्ट टिन ऑक्साइड, स्टेरिक ऑक्साइड, ये है टिन ऑक्साइड, ये है स्टेनस ऑक्साइड। दिस इज स्टेनस ऑक्साइड। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Sn+2 Sn+4 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। Sn जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो स्टेनस, Sn+4 में है तो स्टेरिक। चूंकि यहाँ ऑक्सीजन के साथ मुझे साफ साफ दिख रहा है ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ऑब्वियस है इसका +2 ही यहाँ पे होगा। तो दिस इज स्टेनस ऑक्साइड प्लस ये बनाएगा Na2SNO2 plus H2O। This is sodium stenite। इक्वेशन भी शायद बैलेंस करना होगा। 2 इधर 2 सोडियम 2 है, ये बनाएगा हमारा 2। नाउ दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। तो ये था हमारा स्टेनस ऑक्साइड के साथ। अब हम देखते हैं स्टेनिक ऑक्साइड के साथ। SnO2 plus NaOH, it will give Na2
SnO2O3 plus H2O, and this is called sodium stannate. Sodium stannate. This is sodium stannite and this is sodium stannate. इक्वेशन बैलेंस करो बेटा. 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये 2. नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. ठीक है. अच्छा, अब हम देखते हैं लेड के साथ रिएक्शन. लेड में लेड के साथ रिएक्शन देखते हैं. इट्स नॉट लेड, इट्स लेड. हम एसिड बोलते हैं. दैट्स नॉट एसिड, दैट्स एसिड. नाउ नेक्स्ट, अब हम देखते हैं लेड के साथ. पहले लेड ऑक्साइड, लेड 2 ऑक्साइड या प्लम्बस ऑक्साइड प्लस NaOH. लेड भी बेटा 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है. जब वो अपने स्मॉल वाले +2 +4, तो जब वो अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हम उसको प्लम्बस बोलते हैं, और जब वो अपने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हम उसको प्लम्बिक बोलते हैं. ये है हमारा प्लम्बस ऑक्साइड, यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. अब हम ये बनेगा Na2PbO2 प्लस H2O. ये होगा हमारा सोडियम प्लम्बाइट. सोडियम प्लम्बाइट बैलेंस हो गया इक्वेशन. ठीक है. अब PbO2 प्लस NaOH सेम बात है. ये अब हम प्लम्बस ऑक्साइड के साथ देख रहे थे. अब हम प्लम्बिक ऑक्साइड के साथ यानी लेड 4 ऑक्साइड के साथ हम देख रहे हैं रिएक्शन NaOH का. यहाँ हमारा बना था सोडियम स्टैनेट, यहाँ हमारा बनेगा सोडियम प्लम्बेट. PbO3 प्लस H2O एंड इट विल फॉर्म सोडियम प्लम्बेट. क्लियर है. इक्वेशन बैलेंस करके देख लो. हो गया इक्वेशन बैलेंस. ठीक है. तो एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ, एम्फोटेरिक मेटल के ऑक्साइड्स के साथ जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स बनाता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, ये तो ऑक्साइड्स के साथ था. अब हम देखते हैं एक्शन विथ एम्फोटेरिक मेटल्स. एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ हो, ये तो ऑक्साइड्स के साथ था इनके, लेकिन एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ कैसे करते हैं ये देखते हैं. Action on amphoteric metals. Action on amphoteric metals. Action on amphoteric metals. ठीक है. Let's see. Amphoteric metals react with NaOH. Amphoteric metals react with NaOH to form या to liberate hydrogen gas. To liberate hydrogen gas. ठीक है. एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है. लेट्स सी. एल्यूमिनियम प्लस NaOH प्लस H2O. It will form NaAlO2 plus H2. This is sodium meta aluminate. अभी हमने लास्ट में देखा था, लास्ट वाले रिएक्शंस में. ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है या बैलेंस है. लेट्स सी. नो, इट्स नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन. नहीं, बैलेंस्ड है. इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक से देखो, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है कंप्लीटली शायद. Na हाइड्रोजन 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है. नो, इट्स नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन. तो हम किसी भी तरह वहाँ 3 तो नहीं कर सकते बेटा.
हो गया बैलेंस. नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड. Zn प्लस NaOH ये बनाएगा Na2ZnO2 प्लस H2. दिस इज सोडियम जिंकेट. बैलेंस करिए इक्वेशन को. ठीक है. नाउ इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन. इसी तरह हमारा लेड के साथ होगा और इसी तरह हमारा टिन के साथ होगा. हमने एम्फोटरिक ऑक्साइड्स के साथ देख लिया था. अब करके देखो Sn प्लस NaOH प्लस H2O दैट विल फॉर्म. बनाइए. क्या बनेगा? Na2SnO3 प्लस H2. ठीक है. मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म सोडियम स्टैनेट. सोडियम स्टैनेट एंड द इक्वेशन बैलेंस्ड है. 2 3 हो गया, 4 हो गया. अभी इक्वेशन बैलेंस्ड. ठीक है. इसी तरह जब ये रिएक्ट करेगा हमारा लेड के साथ तो इट विल फॉर्म सोडियम प्लम्बेट. इट विल फॉर्म सोडियम प्लम्बेट. सोडियम प्लम्बेट. सोडियम प्लम्बेट. दिस इज सोडियम स्टैनेट. दिस इज सोडियम जिंकेट. तो एम्फोटरिक मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है. नेक्स्ट, एक्शन ऑन अमोनियम सॉल्ट्स. अमोनियम सॉल्ट्स के साथ किस तरह बिहेव करता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड. लेट्स सी. जस्ट अ मिनट, लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर. अच्छा बेटा, ये जो एम्फोटरिक मेटल्स है ना, ये सारे के सारे जो एम्फोटरिक मेटल्स है ओनली इन्हीं के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉल्युबल होते हैं हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड में. ठीक है. हमारे जो एम्फोटरिक मेटल्स के होते हैं, एम्फोटरिक मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स या ये ऑक्साइड्स हैं, ये सारे सॉल्युबल होते हैं NaOH में, क्योंकि वहाँ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है. लेकिन बाकी जितने हाइड्रोक्साइड्स हैं हमारे, इन एम्फोटरिक मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स को छोड़ के बाकी जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं वो NaOH में सॉल्युबल नहीं होते हैं. दे आर नॉट सॉल्युबल इन NaOH. Action on ammonium salts. Action on ammonium salts. Action on ammonium salts. ठीक है. तो ammonium salts on heating with sodium hydroxide release ammonia gas. Ammonium salts on heating with sodium hydroxide. Ammonium salts on heating with sodium hydroxide liberates ammonia gas. Liberates ammonia gas. अमोनियम के सॉल्ट्स. तो अब जैसे NH4Cl प्लस NaOH, तो ये बनाएगा NaCl प्लस H2O प्लस NH3. So when an ammonium salt is heated with sodium hydroxide, it liberates ammonia gas. Next, एक और example, NH4 twice. This is ammonium chloride and this is ammonium sulfate. Ammonium sulfate on reaction on heating with sodium hydroxide will form sodium sulfate, water and ammonia gas. Ammonium salts को जब भी हम heat करेंगे हमारे अमोनिया ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ammonia gas will be liberated.
Now action on carbon monoxide. Action of carbon monoxide. Action of carbon monoxide. What? Carbon monoxide. CO. Carbon monoxide. Action of carbon monoxide. NaOH reacts with carbon monoxide under pressure. NaOH reacts with carbon monoxide under pressure and under pressure at 150 to 200 degree centigrade, 150 and 200 degree centigrade to form sodium formate. To form sodium formate. To form sodium formate. NaOH plus CO, pressure 150 degree centigrade से 200 degree centigrade, it will react to form HCOONA. This is sodium formate. This is sodium formate. क्लियर है? तो CO कार्बन मोनोक्साइड के साथ हमारा NaOH अंडर प्रेशर एंड एट 150 to 200 degree centigrade temperature, it will form sodium formate. क्लियर है? Let's move further. लेट्स मूव फर्दर. अच्छा, मैंने अभी आप लोगों को एक चार्ट बताया कि हमारे जो एम्फोट्रिक मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सॉल्युबल होते हैं हमारे NaOH में, लेकिन बाकी कोई भी हाइड्रोक्साइड जो होता है हमारा वो हमारा NaOH में सॉल्युबल नहीं होता है. अब मैं कुछ एक लिखवा रही हूँ, कुछ सेपरेशन, अगर कुछ मिक्सचर्स हैं, लेट्स सी, पहले मैं लिखवाती हूँ फिर लिखो. नोट में लिख लो बेटा. नोट 1. नोट में लिखो, a mixture of hydroxides of amphoteric metals, a mixture of hydroxides of amphoteric metals, a mixture of hydroxides of amphoteric metals and other metals, और बाकी दूसरे metals के जो hydroxides हैं can be separated. The mixture of hydroxides of amphoteric metals and other metals can be separated, and other metals can be separated by NaOH. एम्फोट्रिक मेटल्स के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का अगर मिक्सचर हो और दूसरे अदर मेटल के, मतलब एम्फोट्रिक मेटल के कोई भी एम्फोट्रिक मेटल मान लो, सपोज Al का ही हाइड्रोक्साइड हो और एम्फोट्रिक मेटल के अलावा किसी और मेटल का हाइड्रोक्साइड हो, सपोज आयरन ले लो, इनका अगर मिक्सचर हो तो हम बहुत इजीली इस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, इनका हाइड्रोक्साइड और इनका हाइड्रोक्साइड. ये एम्फोट्रिक मेटल है, ये नॉन एम्फोट्रिक है, तो इन दोनों का अगर हाइड्रोक्साइड हो और इनका मिक्सचर दिया हो तो these can be easily separated with the help of NaOH, because we know that amphoteric metal hydroxides are soluble in NaOH, but other metal hydroxides are not soluble in NaOH. Example, mixture of ferric hydroxide and aluminium hydroxide can be separated by NaOH. Clear है? Can be separated by NaOH. ठीक है, ये समझ में आ गई बात सबके. दूसरा है some hydroxides
some hydroxides like zinc hydroxide, copper hydroxide, cadmium hydroxide are soluble in NH4OH, are soluble in NH4OH. NH4OH is ammonium hydroxide. Example mixture of अब मान लो एल्यूमिनियम है और जिंक है, इन दोनों का आपको हाइड्रोक्साइड दिया है, तो आप NaOH से सेपरेट कर सकते हो? नो, यू कैनॉट सेपरेट. बोथ ऑफ देम आर एम्फोटेरिक मेटल्स. तो ये दोनों एम्फोटेरिक मेटल्स हैं, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के हाइड्रोक्साइड्स जो होंगे वो एम्फोटेरिक मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं, और हम जानते हैं कि एम्फोटेरिक मेटल के सारे हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होते हैं NaOH में. तो हम किसी भी तरह NaOH और इनको सेपरेट हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से सेपरेट नहीं कर सकते. मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड zinc hydroxide cannot be separated by NaOH, क्योंकि अगर हम NaOH में डालेंगे तो दोनों के दोनों जो हैं हमारे वो NaOH में soluble है, because both are soluble in NaOH. Thus, it can be separated with the help of NaOH. Thus, they can be separated by dissolving in NH4OH. Thus, they can be separated by dissolving in NH4OH. यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करें, चूंकि दोनों एम्फोटेरिक है नेचर में, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय NaOH. लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हमारा जिंक हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है, while aluminum hydroxide is not soluble. Hence, we can separate these two mixtures with the help of ammonium hydroxide. Clear है? चलो, let's move further to the uses of sodium hydroxide. Let's come to the uses of sodium hydroxide. It is used as a reagent in laboratory. It is used as a reagent in laboratories. Laboratories में reagent की तरह इसका use होता है. It is a strong alkali. It is a strong alkali and is widely used in industries. And is widely used in industries. And it is widely used in industries. Example, soap manufacture में use होता है, purification of bauxite में use होता है. Example, soap manufacture, purification of bauxite, manufacture of rayon, etc. Manufacture of rayon, etc. Manufacture of rayon, etc. ठीक है? Just a minute.
क्लोरीन गैस विच इज ऑब्टेन्ड, आपको NaOH का ये कमर्शियल प्रिपरेशन नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने नहीं बताया है। कमर्शियल गैस आपको पढ़ना था सोडियम कार्बोनेट का सॉल्वेट प्रोसेस, जो मैंने बता दिया है। क्लोरीन गैस विच इज ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग NaOH के प्रिपरेशन के टाइम में हमारा क्लोरीन गैस जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है, इज यूज्ड इस क्लोरीन गैस को, जो हमारा एज अ बाई प्रोडक्ट हमें NaOH के मैन्युफैक्चर से मिलता है, इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर केमिकल्स such as PVC, polyvinyl chloride, clear है? These were the some uses of sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा यहाँ फिनिश होता है। हमने एक सॉल्ट और एक बेस अभी तक देख लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट calcium oxychloride. Let's start calcium oxychloride. Let's start sodium oxychloride. Just a minute. सोडियम ऑक्सीक्लोराइड नहीं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, इट्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। Sodium oxychloride, I'm really sorry, it's calcium oxychloride. Let's start calcium oxychloride. Calcium oxychloride. Calcium oxychloride. Chemical formula CaOCl2, common name bleaching powder. It is also called as chloride of lime. Chloride of lime. Physical properties. No, let's see first preparation. Let's see preparation of bleaching chloride. It is prepared by action of chlorine on slaked lime. स्लेट लाइम के ऊपर जब हम क्लोरीन का एक्शन करते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। CaOH2 ड्राई स्लेट लाइम। स्लेट लाइम को हम ड्राई लेंगे plus CO2, it will form CaOCl2 plus H2O, and this is bleaching
पाउडर। ठीक है, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। हमारे यहाँ ब्लीचिंग पाउडर सबके घरों में यूज होता है फॉर क्लीनिंग पर्पस। सबके घर में ऑलमोस्ट सबने ब्लीचिंग पाउडर का स्मेल तो सभी जानते होंगे, थोड़ा पंजेंट सा होता है, वो अजीब सा एक फीलिंग वो जो पंजेंट सी स्मेल आती है ना बेटा, एक्चुअली दैट इज द स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस। वो जो क्लोरीन उसमें से हमेशा लिबरेट होती रहती है। तो जब आप उसका डब्बा खोलोगे, ऑब्वियस सी बात है कि जब आप ब्लीचिंग पाउडर का डब्बा खोलोगे तो आपको एक अजीब सी पंजेंट सी स्मेल आएगी। दैट स्मेल इज ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। जैसे ही आप खोलते हो ना, वो एटमॉस्फेरिक कार्बन, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और क्लोरीन गैस को लिबरेट कर देता है। उसी क्लोरीन गैस की स्मेल हमें आती है जब हम कहीं ब्लीचिंग पाउडर छिड़कते भी हैं या अगर हम उसका डब्बा खोलते हैं तो। let's start its physical properties. एक्चुअली ये ओरिजिनल जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है, जो प्योर ब्लीचिंग पाउडर होगा, दैट इज एक्चुअली पेल येलो इन कलर, बहुत लाइट येलोइश। पेल येलो मतलब बुझा सा येलो कलर। बट एक्चुअली कुछ हमें जो मार्केट में मिलता है, पता नहीं शायद वो प्योर नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज डिसॉल्व होती है, इस वजह से वो ज़्यादा वाइट हो जाता है। पेल येलो भी नहीं दिखता है, वो हमें बिल्कुल वाइट सा दिखने लगता है। प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, it is a pale yellow powder. It is a pale yellow powder. It has a strong smell of Cl2. It is soluble in water. It is soluble in water. It is soluble in water, but a clear solution is never obtained. Soluble होता है वाटर में, लेकिन हमको कभी भी एक क्लियर सॉल्यूशन नहीं मिलता है, क्योंकि ऑलवेज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती ही होती हैं। बट अ क्लियर सॉल्यूशन इज नेवर ऑब्टेन्ड, but a clear solution is never obtained, but a clear solution is never obtained due to presence of impurities, due to presence of impurities. impurities के presence के कारण हमें कभी भी एक clear solution नहीं मिलता, in spite of the fact कि हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर is soluble in water. In aqueous solution, it gives, in aqueous solution, it gives positive test. अगर हम इसका सॉल्ट टेस्ट करते हैं, सॉल्ट क्या मतलब अगर हम इस सॉल्यूशन का एनालिसिस करें तो इस ये जो एनालिसिस है, इट विल गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर कैल्शियम आयन के प्रेजेंस का पॉजिटिव टेस्ट देगा, क्लोराइड आयन के प्रेजेंस का पॉजिटिव टेस्ट देगा और ऑक्सीक्लोराइड आयन के प्रेजेंस का ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। अगर इसके सॉल्यूशन का हम टेस्ट करें तो ये इन तीन आयंस के प्रेजेंस का टेस्ट पॉजिटिव शो करता है। क्लियर है? लेट्स मूव फर्दर टू केमिकल प्रॉपर्टीज। Let's move further to chemical properties. Chemical properties. First, decomposition. On standing, it decomposes to calcium chloride and calcium chlorate. Calcium chloride and calcium chlorate.
रिएक्शन को बैलेंस करना होगा. दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड. लेट्स बैलेंस द इक्वेशन. 5 2 10 और 2 12 हो गया. दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड. ठीक है. ऑन स्टैंडिंग इट डिकम्पोजेस टू कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोरेट. ठीक है. ऑन स्टैंडिंग क्लोरीन percent decreases regularly. Due to this chlorine percentage decreases regularly due to this germicidal nature is lost. ठीक है. ड्यू टू दिस जर्मिसिल क्लोरीन का परसेंटेज, उसको अगर यूं ही खुला छोड़ दिया जाए, क्लोरीन का परसेंटेज रेगुलरली उसमें से डिक्रीज होता है. और जैसे जैसे क्लोरीन अगर उसमें से हटती चली जाएगी, क्लोरीन उसमें से निकलता चला जाएगा, लिबरेट होता चला जाएगा, तो क्लोरीन की प्रॉपर्टी, जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, जो जर्मिसिल प्रॉपर्टी है, वो ब्लीचिंग पाउडर में से धीरे धीरे ब्लीचिंग पाउडर की वो जर्मिसिल प्रॉपर्टी वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, लॉस्ट होने लगेगी. अगर आप बहुत दिन ब्लीचिंग पाउडर को रख दो और उस डिब्बे को अगर बार बार खोला गया हो, बार बार बंद किया गया हो, तो देखना तो धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है ब्लीचिंग पाउडर की. ये रिएक्शन जो है ये, ठीक है, ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है. नाउ लेट्स मूव reaction with dilute acids. Reaction with dilute acids. Reaction with dilute acids. ब्लीचिंग पाउडर जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो किस तरह बिहेव करेगा. लेट्स सी. with limited quantity of acids, with limited quantity of acids, H2SO4, HCl, अगर इनकी लिमिटेड क्वांटिटी यूज की जाए तो डाइल्यूट एसिड्स, लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट एसिड्स, देन with limited quantity of dilute acids, bleaching powder produces, with limited quantity of dilute acids, bleaching powder produces, या bleaching powder liberates oxygen gas, liberates oxygen gas CaO, Cl2 plus H2SO4, that will form calcium sulfate, calcium chloride plus C chloride, HOCl. ये हो गया. और ये HOCl हमारा लिबरेट करता है HCl प्लस. तो अगर लिमिटेड क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी के साथ अगर हम रिएक्शन करें ब्लीचिंग पाउडर का, तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी. इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन is responsible for its bleaching property. Evolution of oxygen is responsible for bleaching property. ठीक है. अगर हम एक्सेस ऑफ CO2, एक्सेस ऑफ एसिड के साथ ब्लीचिंग पाउडर को ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट कराएंगे तो क्लोरीन गैस लिबरेट होगी.
तो हमारी क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। जस्ट dilute acids, with excess of dilute acids, bleaching powder liberates chlorine gas. Bleaching powder liberates chlorine gas, which is called available chlorine. Chlorine gas, which is called available chlorine, Due to this availability of chlorine, उसमें एक जो disinfectant की property होती है, इसी क्लोरीन के कारण होती है. Due to available chlorine, it shows the due to the presence of available chlorine, it acts as a disinfectant या germicide. Disinfectant. Clear? Disinfectant. CaOCl2 plus HCl, it will give CaCl2 plus H2O plus Cl2. बैलेंस कर लीजिए इक्वेशन को, 2 2 4, यहाँ 2 कर दो, हो जाएगा इक्वेशन हमारा बैलेंस. CaOCl2 plus H2SO4, it will give CaSO4 plus H2O plus Cl2. 4 और 1 5, 4 और 1 5, 1 सल्फर 1 हाइड्रोजन 2. दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. Cl2 is liberated with CO2 also. Cl2 is liberated with CO2 also. CaOCl2 plus CO2, it will give CaCO3 plus Cl2 chlorine gas plus Cl2 chlorine gas. क्लियर है? इसी क्लोरीन अवेलेबल क्लोरीन होने के कारण हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर है, इट शोज द डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज. एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये किस तरह एक्ट करता है, ये तीसरी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर. ऑक्सीडाइजिंग नेचर तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर की अगर हम बात करें, ब्लीचिंग पाउडर इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ब्लीचिंग पाउडर के पास ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, ऑल द स्टैंडिंग पर भी ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीजन अवेलेबल है जो वो किसी को भी ऑक्सीडाइज करने के लिए दे सकता है. सो इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आप देखो CaOCl2 प्लस Na2ASO3 आर्सेनेट, सोडियम आर्सेनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस सोडियम आर्सेनाइट, इट विल फॉर्म, जस्ट अ मिनट बेटा, सोडियम आर्सेनेट आर्सेनाइट के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म सोडियम आर्सेनेट प्लस CaCl2. ठीक है, उसने सोडियम आर्सेनाइट को ऑक्सीजन दिया और उसको आर्सेनेट में चेंज कर दिया. CaOCl2 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4, ये हमारा, ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो हमारा बनेगा Fe2SO4 plus CaCl2 plus H2O. इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत इजीली ऑक्सीडाइज कर देता है
CaOCl2 plus KNO2 potassium nitrite. This is KNO2. It will oxidize into potassium nitrate plus H2O. ये सोडियम आर्सेनाइड, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, potassium nitrite, potassium nitrate. So it is a very good oxidizing agent. CaOCl2 plus NH3. It will give CaCl2 plus H2O plus N2. बैलेंस कर लीजिए इक्वेशन को. CaCl2 2NH3 इक्वेशन बैलेंस होगा. यहाँ 2 जाएगा, 3 2 6 6 6 6 6. तो यहाँ हमारा ऑक्सीजन है हमारा 6 6 2 12 6 हो जाएगा. 3 2 ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3. आई थिंक द इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड. बैलेंस है इक्वेशन. Now let's come to bleaching action. चूंकि इसमें ऑलवेज ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, नेसेंट ऑक्सीजन हम अवेलेबल कर सकते हैं, इसमें अवेलेबल होता है. इसी वजह से ये किसी पे भी बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग नेचर ही इसका इस कारण से होता है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. तो चूंकि इसमें ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन. देखो जब हम इस तरह ऑक्सीजन लिखते हैं ना तो ये नेसेंट ऑक्सीजन कहला रहा है. ऑक्सीजन इन नेसेंट फॉर्म, या समझ लो ऑक्सीजन गैस ही आप इसको इस तरह नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं. इसी तरह लिबरेट होता है उसमें से ऑक्सीजन जो है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में से. एज ब्लीचिंग पाउडर गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, एज ब्लीचिंग पाउडर gives nascent oxygen, it acts as bleaching agent. It acts as bleaching agent. किसी भी कलर्ड मैटर में अगर हम ब्लीचिंग पाउडर, तो वो नेसेंट ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाएगा उसको, और हमारा जो कपड़ा है वो कपड़ा हमारा कलरलेस हो जाएगा, ब्लीच हो जाएगा, कलरलेस. ठीक है, ये हमें मिला. नेसेंट ऑक्सीजन जो हमें है वो हमें मिल रहा है ब्लीचिंग पाउडर से. ठीक है, तो यहाँ तक तो थी हमारी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर का हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज देख लिया है. अभी इसमें कुछ और बाकी है, हम नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं. चलो, टिल देन थैंक यू.